کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا نام محمد رکھنا، جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ ارے بولو نا، اب تو بولو سبحان اللہ، بولو نا، ارے بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام، بولو نا ساتھ میں بولو نا، کسی کا مقام، ہمارے نبی کی رفعتوں سے بڑھ کر کسی کی رفعت، ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کسی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبتوں سے بڑھ کر کسی کی منقبت، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان۔ ارے میرے پیاروں، ہم تو دل و جان سے کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں محمد محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا کی شان بتاؤ، ارے بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی شان۔ دیکھو میں شان بتاؤں گا پھر ہم کو نتیجے پر آنا، آؤ گے نا، نتیجے پر آؤ گے، ارے بولو نتیجے پر آؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی میں شان آپ کو بتاؤں میرے دوستو، اتنی پیاری شان، اتنی پیاری شان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولا علی، بولو نا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں، سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے۔ آپ نے جیسے سلام پھیرا تو دیکھا کہ اوہ اتنا بڑا مجمع، ارے فجر کی نماز تو حضرت علی روز پڑھاتے لیکن مسجد میں مجمع ہوتا، لیکن آج تو بہت بڑا مجمع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا بھائی بہت سارے مسافر لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے؟ بہت سارے مسافر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو جتنے مسافر آئے تھے نا وہ سب آئے، آ کر کہا علی علی، سب نے آ کر کہا علی ہم یہاں کوفہ میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم کوئی بزنس کرنے نہیں آئے، ہم کوئی دھندا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں آج ہم پر احسان کرو اور پیارے نبی کی صورت تو بتا دو، پیارے نبی کی صورت بتا دو، صرف نبی کی صورت کو سننے کے لیے آپ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے، شیر خدا سے کہا میرے نبی کی صورت کو سننے کے لیے آئے ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر پر، ارے بولو کہاں پر؟ منبر پر، اور سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سما باندھا، اللہ کی قسم میرے دوستو یہ نصیبہ ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے، یہ مجلس ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور سارے لوگ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا کہ میرے نبی کے زلف مبارک کیسے، میرے نبی کے بال، میرے نبی بولو میرے نبی کے بال مبارک کیسے، اور اللہ کی قسم پورے ولن والو اللہ کی قسم کھا کر کہو نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے بولو نا، نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے میرے سر پر بھی بال ہے، میرے داڑھی کے بھی بال ہے، لیکن میرے دوستو یہ میرے بال میرے بدن سے نکلے ہوئے۔ ارے مصطفیٰ کے زلف مبارک، مصطفیٰ کی داڑھی مبارک، کوئی تو پوچھے کہ وہ بال کیسے بال تھے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ ہماری طرح بال نہیں تھے، جب مصطفیٰ کے بال آنے تھے اللہ نے جنت کے پودوں سے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کے بال مبارک، ارے سنو ہمارے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمین پر بال مبارک آپ کے سر پر، اور اللہ انہی بالوں کی تعریف آسمانوں پر کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے بالوں کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو، بالوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، پھر کیا فرمایا؟ واللیل اذا یغشاها۔ میرے محبوب تیرے بالوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، آگے ایک جگہ پر فرمایا والضحى واللیل اذا سجا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زمین پر رہتے تھے، اللہ بالوں کی آسمان پر۔ اب سننا، میں آپ کو بہت تفصیل میں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو بہت تفصیل میں بتاؤں گا، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے کس طرح بیان کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں تو بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھ گئے، کوفہ مسجد کے منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کہنا شروع کیا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمینوں پر اور اللہ زلفے کی قسم کھاتا تھا۔ لیکن معلوم نہیں ہم کو نبی کے بال نہیں پسند نا، ہمارے نبی کے بال زلفے ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ کبھی یہاں کان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی اور نیچے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہمارے نبی کے بال کبھی وفرہ، کبھی لمہ، کبھی جمہ، وفرہ لمہ جمہ۔ اور ہمارے جوانوں کے بال یہ معلوم نہیں، تو ابھی ٹوپی پہنے مولی ابراہیم، ایسے کچھ کھڑے کھڑے بال ہوتے ہیں۔
हाँ, और बाकायदा हजामों के पास जाके यूं खड़े करवाता है, और जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर। सही मौलाना, सही ना? मैं तो देखता हूँ तो एकदम हैरान हो जाता हूँ, ऐसे खड़े खड़े बाल, अल्लाह अकबर। और फिर किसी को देखा, कुछ छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि बाल होंगे यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ इधर नहीं, इधर नहीं, पीछे बिल्कुल साफ, हाँ 0 नंबर का मशीन, और ऊपर ऐसे झुमघट्टा, हाँ जैसे वो अंबोड़ा औरत का, हाँ है ना? अरे बोलो ऐसा होते कि नहीं होते? मैं तो देखा तो हैरान हो गया। आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, जब मैंने देखा ना, मैंने सही में बाल मैंने देखा, इधर कटा हुआ, इधर छटा हुआ, और बीच में ऐसा बाल। अल्लाह की कसम खा के कहूं मेरे दोस्तों, जिस दिन मैंने पहली मर्तबा देखा, मेरे दिलो जान से ये निकला, मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था एक उम्मत आएगी, हमारे नबी ने कहा था एक उम्मत आएगी जिनके बाल ऐसे होंगे, कुछ जगह पर बाल होंगे, कुछ जगह पर बाल नहीं होंगे। और हमारे नबी ने फरमाया था ये वो लोग होंगे जिन पर खुदा रसूल की लानत बरसती होगी। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया होगा। अरे उस वक्त कहाँ समझ में आया होगा? सहाबा को समझ में आया होगा, ताबीइन को समझ में आया होगा। अरे हमको हमारे जमाने में समझ में नहीं है, तो अभी अभी की स्टाइल निकली है, ये तो अभी अभी की स्टाइल है ना भाई? स्टाइल है कि नहीं है? हाँ, अभी तो अजीब अजीब स्टाइल निकली है। पटलून पहनते हैं ना, तो मेरे को तो हैरानी हो जाती है कि बेचारा पेशाब कैसा करता होगा, इतनी टाइट है ना। वो जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो? जीन्स समझते हो? अरे तुम तो मेरे से ज्यादा समझते होंगे ना। अरे जीन्स पहनते ना, मैंने तो एक आदमी को देखा, मौलाना इब्राहिम साहब, मैंने एक आदमी को देखा तो हैरान हो गया। अरे भाई पटलून पहनता है तो ढंग की तो पहन। अरे भाई देखो, ये मैंने पैजामा पहना तो ये भी सफेद कलर का, ये भी सफेद कलर का। अरे भाई दोनों पाइचे एक ही कलर के होंगे ना। अब हमारे एक जवान को मैंने सूरत में देखा, जीन्स पहना है लेकिन एक पाँव का कलर डार्क ब्लू और एक का लाइट ब्लू। ऐसा लगता दर्जी को 2 अलग अलग कपड़े लेने पड़े। अच्छा चलो, एक तो ये था। दूसरा क्या था मालूम? आदमी कभी भी मजमे में जाएगा तो फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। सही है ना? मेरे कपड़े पे भी दाग वाग लगा होगा, फटा होगा ना, तो मेरी बीवी क्या बोलेगी? नहीं देखो तुम बयान करने जाते हो ना, ऐसा मत पहन के जाओ, वरना लोग क्या बोलेंगे कि इनकी बीवी कपड़े का भी ख्याल नहीं रखती है। लेकिन मैंने वो जवान को देखा, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और यहाँ जो घुटना है ना उस पर 3 चीरे पड़े हुए, फटे, यानी बाकायदा फटा हुआ। हाँ, अच्छा फिर एक अजीब बात क्या देखा मालूम? अब जेब होते ना, जेब, ये देखो इधर जेब, इधर जेब, इधर भी जेब लगा हुआ, इधर। तो एक पाइचे पे इधर जेब लगा हुआ और एक पाइचे पे इधर दिल बना हुआ, दिल। अरे दुनिया का दिल इधर अटकता, अटैक इधर आता है, इसको अटैक इधर आता है, दिल बना हुआ इधर, दिल। सुनना सुनना, आगे सुनना। अब वो मेरे साथ में खड़ा है, उसका पैजामे का ये, अरे जीन्स का पैजामा नहीं, जीन्स का एक डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इधर जेब बना हुआ, इधर दिल बना हुआ। अब वो मेरे से बात करता, मेरे को तो कुछ भी ध्यान नहीं, सही कसम मेरे को कुछ ध्यान नहीं। मैं तो खाली उसकी पटलून ही देखा करूँ कि ये म्यूजियम में रखने जैसी पटलून है भाई, ये कैसी पटलून। और बाल ऐसे हैं, खड़े खड़े ऐसे बाल, और इतना इतना अच्छा, थोड़ा इंग्लिश में भी बोले। तो उसने मेरे को कोई सवाल पूछा, तो मैं बोला क्या? कहते मौलाना मेरी बात नहीं सुनते, मैं कब से बोल रहा हूँ। मैंने कहा कसम अल्लाह की नहीं सुनता, मैं तेरी पटलून देखता हूँ। और मैंने उसको क्या कहा मालूम? देख भाई ये बदल किया, उल्टी पहन के आया है, और वो भी ऐसी उल्टी पहना कि एक पाइचा सीधा नहीं, एक पाइचा। तो यूं देखा, यूं उसने देखा, देखने के बाद कहते मौलाना दिस इज मॉडर्न स्टाइल। हाँ क्या कहा? दिस इज मॉडर्न स्टाइल। इट्स ओके। ओके तो बहुत अच्छा बोलता, इट्स ओके, इट्स मॉडर्न स्टाइल। तो मैंने कहा ये कौन सी स्टाइल भाई? दिल इधर अटक गया, पाइचे का कलर बदल गया, ये कौन है? तो मेरे को कहता मौलाना तुम लोग मुल्ला लोगों को कुछ मालूम ही नहीं। हाँ मुल्ला लोगों को तो मालूम ही नहीं ना, बेचारे को क्या मालूम है? तो मुल्ला लोग को कुछ ना मालूम नहीं। वो हीरो अभी जो ना, मालूम नहीं कौन से हीरो का नाम लिया, कहा वो हीरो ने ऐसा पहना ना, सारे जवान ऐसा पहन के घूमते। मैंने कहा अच्छा हुआ वो हीरो ने पहना, नहीं पहना होता तो? नहीं समझे तो कल पूछ लेना। मेरे दोस्तों, ये क्या हमारे आका का तरीका है? सच बताओ मेरे प्यारों, क्या ये हमारे नबी का तरीका है? मैं आपको वो बात बता रहा था भाई, वो बाल वाली बात बता रहा, भाई बाल वाली बात बता रहा था ना। हाँ सब लोग सुनेंगे ना भाई? आप लोग सुभान अल्लाह कहोगे? बोलो कहोगे ना इंशाअल्लाह? आज मौलाना सब बहुत ठंडे ठंडे दिख रहे हैं बोलने वाले। बंद कर दूं बयान? बंद कर दूं? शुरू रखो ना? हाँ
सुनोगे ना, याद भी करोगे ना इंशाअल्लाह। सुनना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद की मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरे आका ताजदार मदीना की सूरत बता दूं। हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी के बाल मुबारक ऐसे थे, जुल्फे मुबारक ऐसे थे, जमीनों पर चला करते थे, अल्लाह आसमानों पर जुल्फे मुबारक की कसम उठाया करता था। फिर हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी की पेशानी मुबारक ऐसी थी, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे नबी के गाल मुबारक ऐसे थे, कहो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे नबी के कान मुबारक ऐसे थे, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली बताते गए आंख मुबारक पर आए, बोलो सुभान अल्लाह। किस पर आए? आंख मुबारक पर आए। हजरत अली ने फरमाया दुनिया वालों की आंखें होगी, आगे आगे देखता होगा, मेरे पास आंखें कहां देखूंगा? पीछे मौली इब्राहिम क्या करता है मेरे को नहीं मालूम। मालूम? बोलो मालूम। आपके पीछे क्या होता है आपको मालूम? आगे देखूंगा, और आगे देखूंगा उसमें भी 40-50 साल हो गए तो आंखों में भी नंबर आ जाते, तो वो भी थोड़ा आगे देखता, बहुत आगे, और थोड़ा और हो गया तो मोती आ गया, तो गया, काम से गया। हाँ सुनना, हजरत अली क्या फरमाते, पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा तो मैं बोलूंगा, भाई कहोगे ना सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े फरमाया मेरे नबी के जुल्फे मुबारक की शान ऐसी थी, जमीन पर चलते थे, अल्लाह आसमानों पर कसमें उठाया करता था। मेरे नबी की पेशानी मुबारक ऐसी थी, मेरे नबी के कान मुबारक ऐसे थे, मेरे नबी के गाल मुबारक ऐसे थे। हजरत अली ने बताते बताते फरमाया सुभान अल्लाह, मेरे नबी की आंख मुबारक सारे कयामत तक आने वाले आंखों से सामने देखा करते हैं। मेरा मुस्तफा नमाज में खड़ा हो जाता, उसी वक्त वो आगे भी देखता था और पीछे भी देखा करता था। मेरा मुस्तफा जब नमाज में खड़ा हो जाए, कहो सुभान अल्लाह, तो ये रूह जो है, रूह आईने की तरह हो जाए। मेरे प्यारो, इन आंखों से मेरे नबी आगे की तरफ देखे, और दिल जो आईना हो गया उससे आप पीछे की तरफ नजर करे। हजरत अली फरमाते मेरे नबी की मुबारक आंखें ऐसी थी, उजाले में भी नजर आते थे और अंधेरों में भी देखा करते थे। सुभान अल्लाह। बताते बताते हजरत अली ने क्या फरमाया, कहोगे ना सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे नबी के होठ मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी के दांत मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे नबी के होठ मुबारक, मेरे नबी के दांत मुबारक की शान ये थी, सहाबा सामने बैठा करते थे और आपके मुस्कुराने का इंतजार करते थे। हम लोग किसी के हंसने का इंतजार नहीं करते? अरे बोलो ना, हंसने का इंतजार करते, ले दे के करता है तो थोड़ा बीवी का करता होगा, बाकी हंसने का इंतजार करते किसी का? सहाबा इंतजार करते थे मेरे नबी कब हंसे, कब हंसे, कब हंसे, कब हंसे। हजरत अली क्या फरमाते, मौला अली शेर खुदा मिंबर पर खड़े होकर फरमाते अल्लाह की कसम हम हमारे नबी के हंसने का इंतजार करते। और फिर हजरत अली ने फरमाया पूछो क्यों? अरे पूछो पूछो, आप भी पूछो ना क्यों क्यों? तो क्या फरमाया हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी जब मुस्कुराया करते थे, आपके होठ मुबारक, आपके दांत मुबारक, जब आप मुस्कुराया करते थे, सामने की दीवारों पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती थी। ये हमारे आका थे, ताजदार मदीना। हजरत अली ने यहां तक बताया, फिर क्या किया मालूम? हजरत अली मिंबर से उतरने लगे, सब सुन रहे थे। कहा मौला अली अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी तो आंख, कान, नाक, होठ, दांत, हाँ आपने आगे तो कुछ बताया नहीं। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हजरत अली पर, रोते रोते सीढ़ी उतर गए और नीचे ऐसा बैठ गए जैसा कोई फकीर बैठता है। सब बैठे थे। कहा क्या हो गया, आप अचानक रोने क्यों लगे? कहा मैंने नबी की पेशानी मुबारक बताई, मैंने नबी के दांत मुबारक बताए, मैंने नबी के जुल्फे मुबारक बताए, मैंने नबी के गाल मुबारक बताए। हजरत अली फरमाते अभी हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे कहता है मैं क़यामत तक बयान करूंगा, लेकिन मैं नबी की सूरत नहीं बता सकता, मैं नबी का हक अदा नहीं कर सकता। बस हजरत अली ने कहा एक जुमला लिख लो, सब लोग एक जुमला लिख लो, बस ये काफी है। हजरत अली ने फरमाया माराई तो मिसला ला कबला वला बादा। हजरत अली ने फरमाया इतना लिख लो, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, मोहम्मद से पहले भी कोई मोहम्मद की तरह आया नहीं और कयामत तक मोहम्मद की तरह कोई आएगा भी नहीं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये हमारे नबी की शान। अरे बोलो ये हमारे नबी की
आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। आपने जिब्राइल का नाम सुना? सुना सुना ना, बोलो साथ में बोलो, सुना। किनका नाम सुना? हजरत जिब्राइल, सारे फरिश्तों के सरदार। ये एक मर्तबा इंसान की शक्ल में आए, सुनना, इंसान की शक्ल में आए, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान की वही लेकर आए। भाई क्या लेकर आए? वही, कुरान। और इतनी बात समझना, हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात पूरी जिंदगी में 24,000 मरतबा हुई है। इमाम बुखारी ने बयान किया कितनी मरतबा मुलाकात हुई। अब आप बताओ 24,000 जिससे मुलाकात हुए तो बेतकल्लुफी हो जावे कि नहीं? अरे दोस्ती हो जावे कि नहीं? अरे हम लोग 4-5 मरतबा वलन आ गए तो अब वलन आता हो तो ऐसा लगता सबको मैं पहचानता, सब मेरे को पहचानते। हालांकि कोई मेरे को पूछे वलन 10 मरतबा आया, मैं कहूंगा नहीं 10 मरतबा नहीं आया, 9 मरतबा नहीं आया, 8 मरतबा नहीं आया, मैं 4, 5, 6 मरतबा आया, लेकिन सारा वलन मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा है। तो मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात जिंदगी में 23 साल में 24,000 मरतबा मुलाकात हुई। अब एक मरतबा हजरत जिब्राइल आए, कुरान की आयत लेकर आए। आपको मालूम है जब जिब्राइल कुरान की आयत लेकर आते थे तो हमारे नबी उसको सीने में रख देते थे। भाई उतर जाता कि नहीं? यानी हजरत जिब्राइल बोलते जाते और हमारे नबी उसको सीने में उतारते जाते। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब फिक्र मत करना, हर आयत तेरे सीने में उतारना ये मेरा काम है। भाई कहा ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं कहा? 29वें पारे में, कौन से पारे में? 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तो मेरे दोस्तों सुनना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुरान करीम लेकर आए और सारा का सारा जो भी लेकर आए हमारे नबी ने अपने मुबारक सीने में उतारा। अब क्या हुआ? टाइम पूरा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल टाइम इज ओवर, जाओ भाई तुम्हारी जगह ऊपर जाओ। अरे जिब्राइल जा नहीं रहे, हमारे नबी कोई और काम में लग गए। फिर हमारे नबी मुतवज्जे हुए तो फिर जिब्राइल बैठे। हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल आज जा नहीं रहे हो? भाई काम पूरा हो गया, जा नहीं रहे हो? चलो कोई बात नहीं। हमारे नबी फिर काम में लगे, फिर आए, फिर देखा कि जिब्राइल सामने। हमारे नबी ने फरमाया, माँ बालू का या जिब्राइल, अरे जिब्राइल हुआ कि आज जाते क्यों नहीं हो? जिब्राइल ने क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? लेकिन मैं नबी की सूरत नहीं बता सकता, आपके चेहरे मैं नबी का हक अदा नहीं कर सकता। बस हजरत अली ने कहा एक जुमला लिख लो, सब लोग एक जुमला लिख लो, बस ये काफी है। हजरत अली ने फरमाया, मा राइतु मिसला ला क़ब्ला वला बादा। हजरत अली ने फरमाया, इतना लिख लो, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, मोहम्मद से पहले भी कोई मोहम्मद की तरह आया नहीं और कयामत तक मोहम्मद की तरह कोई आएगा भी नहीं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये हमारे नबी की शान। अरे बोलो, ये हमारे नबी की। आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। आपने जिब्राइल का नाम सुना? सुना सुना ना, बोलो साथ में बोलो, सुना। किनका नाम सुना? हजरत जिब्राइल, सारे फरिश्तों के सरदार। ये एक मर्तबा इंसान की शक्ल में आए, सुनना, इंसान की शक्ल में आए, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान की वही लेकर आए। भाई क्या लेकर आए? वही, कुरान। और इतनी बात समझना, हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात पूरी जिंदगी में 24,000 मरतबा हुई है। इमाम बुखारी ने बयान किया कितनी मरतबा मुलाकात हुई। अब आप बताओ 24,000 जिससे मुलाकात हुए तो बेतकल्लुफी हो जावे कि नहीं? अरे दोस्ती हो जावे कि नहीं? अरे हम लोग 4-5 मरतबा वलन आ गए तो अब वलन आता हो तो ऐसा लगता सबको मैं पहचानता, सब मेरे को पहचानते। हालांकि कोई मेरे को पूछे वलन 10 मरतबा आया, मैं कहूंगा नहीं 10 मरतबा नहीं आया, 9 मरतबा नहीं आया, 8 मरतबा नहीं आया, मैं 4, 5, 6 मरतबा आया, लेकिन सारा वलन मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा है। तो मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात जिंदगी में 23 साल में 24,000 मरतबा मुलाकात हुई। अब एक मरतबा हजरत जिब्राइल आए, कुरान की आयत लेकर आए। आपको मालूम है जब जिब्राइल कुरान की आयत लेकर आते थे तो हमारे नबी उसको सीने में रख देते थे। भाई उतर जाता कि नहीं? यानी हजरत जिब्राइल बोलते जाते और हमारे नबी उसको सीने में उतारते जाते। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब फिक्र मत करना, हर आयत तेरे सीने में उतारना ये मेरा काम है। भाई कहा ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं कहा? 29वें पारे में, कौन से पारे में? 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तो मेरे दोस्तों सुनना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुरान करीम लेकर आए और सारा का सारा जो भी लेकर आए हमारे नबी ने अपने मुबारक सीने में उतारा। अब क्या हुआ?
टाइम पूरा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल टाइम इज ओवर, जाओ भाई तुम्हारी जगह ऊपर जाओ। हज़रत जिब्राइल जा नहीं रहे, हमारे नबी कोई और काम में लग गए। फिर हमारे नबी मुतवज्जे हुए तो फिर जिब्राइल बैठे। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आज जा नहीं रहे हो, भाई काम पूरा हो गया, जा नहीं रहे हो, चलो कोई बात नहीं। हमारे नबी फिर काम में लगे, फिर आए, फिर देखा कि जिब्राइल सामने। हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल, अरे जिब्राइल हुआ कि आज जाते क्यों नहीं हो? जिब्राइल ने क्या फरमाया मालूम क्या फरमाया? जाने का जी नहीं चाहता, आपके चेहरे को देखकर चाहता है कि यहीं पर जिंदगी खत्म कर दो। और फिर हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया वो सुनने जैसा। क्या फरमाया सुनना। हजरत जिब्राइल साथ में कह दो सुभान अल्लाह कह दो, पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह अकबर कह दो, बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कह दो। क्या फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफा मैंने न जाने लाखों नबियों की मुलाकात की, अरे मैंने 1 लाख नबियों की मुलाकात की होगी, अरे मैंने 2 लाख नबियों की मुलाकात की होगी, अरे कम ज्यादा मैंने जितने नबियों की मुलाकात की होगी। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मैंने अर्श का नजारा किया, मैंने आसमानों का नजारा किया, मैंने जन्नतों का दीदार किया, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शमाल को देखा, मैंने जनूब को देखा, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरिया की मौजों को देखा, मैंने सारे नबियों के चेहरे को देखा। लेकिन अल्लाह की कसम जो खूबसूरती और जो नूर आपके चेहरे पर नजर आया वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हजरत जिब्राइल ने फरमाया राइतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अरा गदन अफदल मिनका या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया पूरी दुनिया को छान मारा लेकिन अल्लाह के रसूल आपकी तरह कोई हसीन और जमील। ये जो मैं बता रहा हूं आपको इस पर यकीन आ रहा है ना? साथ में बोलो ना हमारे नबी से अरे सीना ठोक कर बोलो इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। बोलो मजबूत है इंशाअल्लाह। हम लाख गुनहगार सही, लाख गंदे सही, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में लिए हुए हैं। अरे बोलो ना बेशक मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में है। बोलो हाँ हाँ मदीना मुनव्वरा, मदीना मैमूना, मदीना तैयबा। गुनहगार से गुनहगार हो लेकिन रातों को आँख खुलती है तो जुबान पर आता है अल्लाह। मौत देना तो मदीने की जमीन पर मौत अता करना।